हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है तेरे नखरे ये सहंदा है झलक तेरा हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है खबर तेनू कोई ना साडे दिल दा तू नशा है हर दफा है Cause baby I've been falling for you ये जो तेरी दस किन्नियां करा मैं ओ बेबी गर्ल फैन मैं तेरा You make me wanna turn down जेलो जो गुजरूं राह तेरी में शोर करे दुनिया मेरी में ओ बेबी गर्ल तकदा जो तैनू You make me wanna burn down जेलो सिंगल की बन जा रानी दे दे बस यही निशानी तैनू मैं प्यार करा जो दुनिया तो बात तेरे नखरे ये सहंदा है झलक तेरा हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है तेरे नखरे ये सहंदा है झलक तेरा हिलदा रहिंदा है जुल्फां जद तेरी उड़दी है चैन साडे दिल दा नचदा है खबर तेनू कोई ना साडे दिल दा तू नशा है हर दफा है Cause baby I've been falling for you ये जो तेरी अदा है मरहबा है सब तेरा है Cause baby I've been falling for you गड्डी पिछे ना जो लखाई फिरदा जानू से आपा मेरे पाई फिरदा मेरे पिछे लैंदा कातो मुल मुंडिया लड़ाई फिरदा चाई चाई फिरदा नी बैल पुड़ा लेखा च लिखाई फिरदा नी यार तेरा अख जी खड़ाई फिरदा माल अफगानो आ मंगाया गोरीए जेड़ा खाई फिरदा ताई हाई फिरदा वे गड्डी पिछे ना जो लखाई फिरदा फॉर्चूनर तो कुड़े रेंज करी जट ने नी गड्डी तेरे करके आ चेंज करी जट ने बापू कोलों गाला पावे खालियां मैं गोरीए औखी सौखी तेरे लिए रेंज करी जट ने बापू कोलों गाला पावे खालियां मैं गोरीए नी औखी सौखी तेरे लिए रेंज करी जट ने फॉर्चूनर तो कुड़े रेंज करी जट ने गड्डी तेरे करके आ चेंज लेके मेरी फेवरेट क्लास मारने नु फिरदा है मार गुड मॉर्निंग गड्डी विच बैठे जेड़े सारे सुनेगा और मुंडे हाउ वाज योर दिवाली दिल देना मारे मेरे यार गोरीए मारे उत्ते तेरा बार गुड मैम ओके ग्रेट some students are still joining okay लगती मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे visible to you all class लगदी है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन लगदी है मैनू जिवें अंबरां दी क्वीन मिठियां गल्लां करे कुड़ी नमकीन पतला झलक तेरा लक नू संभाल के वन इन द मिलियन लक कमाल के पतला झलक तेरा लक only 43 students are there मुझे दे दे लव डोज okay in last class I have told you what do you mean by algorithm right? So who will tell me what do you mean by algorithms
Mm, okay. What else? What else? See. Good morning, ma'am. Good morning. The topic we were doing was how to develop a program. ठीक है ना? The multi steps of developing a program is program development. ठीक है? In the last class, I have make you understand what do you mean by algorithm. ठीक है? We have done certain examples also. So first of all, there are these steps. These steps are involved in program development. First is understand the problem. How do you understand the problem? What is the problem? A simplest problem is a equals to b plus c. ठीक है ना? This is a problem. You have to make this problem understand to the computer. ठीक है? How you will do that? First of all, you have to understand the problem. Then you will write an algorithm upon it. Then you will create a flow chart of that particular problem. Then you will convert that algorithm and flow chart into a program. Program is what? Which is written in some high level language or some programming language. Right? And then you test it. Test it means if it is working, if it is giving you the correct result or not. ठीक है ना? These are the steps involved in program development. Anybody having any doubt in this class? No, ma'am. No? मैम Yes. मैम कुछ बच्चों की क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही। Okay. Let me see. Beta, there is no pending request with me. All of you have joined. Okay. Yes, class. Who was saying? Ask them again if they are able to join it or not. ओके मैम। Okay. I was talking about algorithm. Can anyone tell me what do you mean by algorithm? I've explained it in last class also. Anyone in the class? It's written on your screen also. It's written over there. So basically, I was talking about how a program is Set of instructions that we follow to accomplish a particular task. Set of instruction. Okay. Right. Kind of. First of all, it is a yes. Mute yourself. First of all, it is a stepwise procedure. ठीक है? We write a stepwise procedure to make the computer understand कि how it is going to work to create a program. ठीक है? Basically होता क्या है algorithm? Algorithm is a stepwise procedure. पहली बात तो हम उसमें steps लिखते हैं, जिसमें एक होता है start और एक होता है end, या फिर or you can say stop.
or you can say stop, right? First of all, it is a stepwise procedure. दूसरा, it is written in any normal English language. There is no constraint कि आपको कैसे लिखना है, but your steps should be clear enough. It should not be ambiguous or it should not be confusing. And at the end, we should be able to convert these steps into some language. C, C++, Java, any language. This is the last step. Write a program. ठीक है ना? This is the next step. When you created an algorithm, you created a flowchart, then you will write a program. You convert this algorithm flowchart into a programming language program. ठीक है? It is a user understandable language. जब आप एक किसी प्रॉब्लम को लेते हो और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हो, आप किसी प्रॉब्लम को लेते हो, फिर आप उस किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तो आप माइंड में एक बैठाते हो ना कि यस आई विल डू दिस एंड देन आई विल डू दिस. अच्छा चलो एक रूटीन लेते हैं हम. अगर आप सुबह उठे हो, आपने रूटीन माइंड में एक सेट किया दैट इतने बजे ये क्लास है, फिर इतने बजे ये क्लास है, इतने बजे क्लासेस ओवर हो जाएंगी, देन आई विल गो टू डू दिस वर्क, देन आई विल सबमिट सम असाइनमेंट, देन आई विल go for look some books also, then dinner, your lunch, your everything. You make a schedule of that, okay, in your mind. That is a stepwise procedure. Again, it is similar with the C programming also, or any kind of programming. You completely take a stepwise procedure, and that should not be ambiguous, that should not be confusing for the programmer to read. अब आपने एक प्रॉब्लम ली कि हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, यू राइट द स्टेप्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, देन यू क्रिएट अ फ्लो चार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एंड देन फर्दर यू राइट अ प्रोग्राम ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इसका मैं एक एग्जांपल हमने किया था क्लास में, लाइक दिस. ठीक है ना? ये दिख रहा होगा एग्जांपल. दिस इज एल्गोरिथम. आई हैव शोन दिस एग्जांपल इन लास्ट क्लास आल्सो. प्रॉब्लम क्या है? टू ऐड टू नंबर्स. क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम गिवन है इस क्लास? ऐड टू नंबर, दो नंबर जोड़ने हैं. तो सबसे पहले स्टेप में क्या लिखोगे? चार्ट लिखोगे. उसके बाद क्या करोगे? दो नंबर रीड करोगे. कौन कौन से? ए एंड बी. दो नंबर रीड किए, 5 रीड किया और 4 रीड किया. देन ऐड टू नंबर्स. इन दो नंबर को ऐड किया, रिजल्ट आया 9. 9 को कहाँ स्टोर किया? सी में. तो सी की वैल्यू कितनी होगी? 9 होगी. 9. ठीक है. एंड डिस्प्ले सी, इसको हमने क्या किया? आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले किया. दैट वैल्यू ऑफ सी इज 9. और लास्ट में हमने एल्गोरिथम क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया. ठीक है. ऐसे ही नेक्स्ट एक एग्जांपल है एवरेज ऑफ 3 नंबर. आप दिमाग में सोचो कि एवरेज ऑफ 3 नंबर कैसे निकालते हो? तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय 3. एनी a b c कुड बी एनी नंबर. ठीक है ना? तो इस आपने जब ये प्रॉब्लम देखी that you have to calculate the average of 3 number, तो माइंड में क्या आया? पहले सबसे पहले फॉर्मूला कि हमने करना कैसे है इसको. तो हमने सोचा a को b में प्लस करना है, b को c में प्लस करना है, और उसको जो भी आउटपुट आएगा उसको 3 से डिवाइड करना है. राइट? तो हाउ यू विल राइट एल्गोरिथम ऑफ दैट? यू विल स्टार्ट पहला स्टेप है, स्टार्ट करना है. देन यू विल रीड नंबर्स. कौन कौन से नंबर है? a b c, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी नंबर है इसको रीड करना है. देन यू विल कंप्यूट द सम को बाद में सम को कंप्यूट करना है. ए बी सी कंप्यूट करोगे और फिर उसको किससे डिवाइड करना है? 3 से डिवाइड कर देना है. एंड आफ्टर दैट जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी स्टोर्ड इन वेरिएबल डी. बेटा क्लास में आते रहोगे बीच में तो कैसे क्लास चलेगा? बार बार बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं. यस हेमंत आर यू देयर? यस मैम. बेटा आप इतने लेट क्यों आए हो क्लास में? अभी ऐड अभी ऐड हुए हम तो. हाँ अभी ऐड क्यों हुए हो? क्लास कितने बजे स्टार्ट होती है हेमंत बताओ? क्या 10-15 पे? हाँ 10-15 पे स्टार्ट होती है. कितना टाइम हो रहा है अभी बच्चे? मैम ऐड ही नहीं थे पहले से, अभी हुए बिल्कुल. मैम से कहा हमने फोन करके. किस मैम से कहा आपने फोन करके? अपेक्षा शर्मा. उनको बोलने से क्या होगा? यहाँ पे तो आपकी कोई रिक्वेस्ट नहीं आ रही ना बेटा. और ये आपके लिए नहीं है हेमंत, ये मैं बाकी क्लास के लिए भी बोल रही हूँ.
try to connect yourself on time, or 5 minutes before you can also connect. I always start my class 5 minutes before. तो 10 पे आपकी क्लास स्टार्ट कर दूंगी, ताकि जो 5-7 मिनट का बफर होता है वो हम लेके चले उसको, ठीक है? तो यू जस्ट कीप ऑन ट्राइंग टू कनेक्ट विद मी, राइट, बिफोर योर क्लास, सो दैट ये गैप है ये ना आए, ओके? क्योंकि आप, मैं पढ़ाती रहती हूँ और बीच में वो क्लिक होता रहता है, somebody is there, somebody is there, join. So I was talking about the algorithms, ठीक है? तो ये algorithms यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, सी, ठीक है? तो नेक्स्ट, जी बोलो। नो मैम, बस ऐसे। अच्छा, तो फर्स्ट एग्जांपल हमने एल्गोरिथम का क्या लिया? टू ऐड टू नंबर्स। और नेक्स्ट एग्जांपल हमने क्या लिया? टू रीड कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर। स्टेप्स क्या देखे? पहले हमने नंबरों को रीड किया, यहाँ भी पहले हमने नंबर रीड किए, फिर हमने उनकी कैलकुलेशन की, यहाँ पे भी हमने फिर उसकी कैलकुलेशन की, फिर हमने रिजल्ट डिस्प्ले किया, यहाँ पे भी फिर हमने रिजल्ट डिस्प्ले किया, और फिर हमने उसको स्टॉप किया, और फिर यहाँ पे भी स्टॉप किया। तो बेसिकली यहाँ पे इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हो? क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हो? सबसे पहले तो आपको क्या करना है? स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है? स्टार्ट करना है। फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा, और लास्ट स्टेप क्या रहेगा? या फिर स्टॉप लिखो। बीच में जो स्टेप्स रहेंगे, सबसे पहले आप लोगे इनपुट, ठीक है? इनपुट यहाँ पे क्या था? ए और बी की वैल्यू। यहाँ पे क्या इनपुट था? ए और बी और सी की वैल्यू थी। फिर आप क्या करोगे? ऑपरेट करोगे। ऑपरेट मीन कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेशन मीन्स जो भी आपने ऑपरेशन लगाना है उस पर काम करना है, जो आपने इनपुट लिया है उस पर जो भी काम करना है उसको ऑपरेट करोगे या कैलकुलेट करोगे। उसके बाद क्या करोगे? लास्ट में आउटपुट डिस्प्ले करोगे। क्या करोगे? आउटपुट डिस्प्ले करोगे, और फिर क्या करोगे? एंड करोगे। तो दिस इज अ जनरल पैटर्न टू राइट एन एल्गो। एल्गो लिखने का एक जनरल पैटर्न होता है। कौन कौन सा? देख लो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट, then you take an input, then you do the meanwhile calculation on this। अगर इसमें यहाँ पे meanwhile calculations क्या थी? a plus b की थी। यहाँ पे meanwhile calculations क्या थी? a plus b plus c divided by 3 था। एंड फिर दोनों में हमने क्या किया? आउटपुट को डिस्प्ले किया और उसको एंड किया। Anyone have doubt in this? Yes class? नो मैम। Anyone is having doubt in this? एल्गोरिदम सिर्फ टाइप करना होता है स्क्रीन पे? क्या बच्चे? एल्गोरिथम सिर्फ टाइप करना होता है स्क्रीन पे? बेटा एल्गोरिथम, इसका रिजल्ट? हाँ ध्यान से समझो। जो एल्गोरिथम है और जो फ्लो चार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। क्या होते हैं? डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होते हैं। ये हम सिंपल पेपर पे उसको लिखते हैं, लाइक एन इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई लेवल लैंग्वेज। इसको आप पेपर पे लिख लो, वर्ड पे लिख लो, नोटपैड पे लिख लो, कहीं भी लिख लो, ठीक है ना? इट इज जस्ट देन पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन। यस, whose question was that? मैम कीर्ति। क्लियर हो रहा है बच्चे क्या करना है इसका? यस कीर्ति। यस मैम। थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको। पहले कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले ये प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है? पहले हम उसका एल्गो लिखते हैं सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में। उसको आप पेपर पे लिख लो, उसको आप वर्ड पे लिख लो, नोटपैड पे लिख लो, कहीं भी लिख लो। फिर आप उसका फ्लो चार्ट बनाते हो, और फिर फाइनली उसको कन्वर्ट करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जो एडिटर मैंने आपको बताए थे, सी के, टर्बो सी या फिर देव सी पे, आप उसको प्रोग्राम को टाइप करते हो और फिर वहां पे आउटपुट जनरेट करते हो। ये सीक्वेंस है टू राइट अ प्रोग्राम और टू राइट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यस यस कीर्ति, am I making any sense? क्लियर मैम। यस मैम। So now see, another example of to write a program is this one.
ये आपको दिख रहा है प्रोग्राम, ये वाला देखो, राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स। पहले सिर्फ एल्गोरिथम देखेंगे, स्वैपिंग टू नंबर्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप जो दो एग्जाम्पल, एक मिनट रुकते हैं इसको, जो दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताए हैं, क्या वो क्लियर हैं? यस क्लास? यस मैम। उसमें कोई भी डाउट है तो पहले हम पूछिए, लेकिन सिर्फ उसी दो एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ जो मैंने अभी बताए आप लोगों को। मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा देती हूँ आपको, ये वाले, ये जो दो एग्जाम्पल दिखाए, अगर इनमें कोई डाउट है तो पूछो। यस? नो मैम। नो। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, ध्यान से रट्टा लगा लो इसको। स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है, वी राइट सर्टेन स्टेप्स, जिसका फॉर्मेट क्या होता है स्टेप्स लिखने का, स्टार्ट करते हैं, स्टॉप करते हैं, पहले इनपुट लेते हैं, फिर उस इनपुट पे ऑपरेट करते हैं, आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, दिस इज रिटन इन स्टेप्स in simple English language that could be understandable, which could be understandable by any of the person or layman or anyone, जो कि पढ़ के उसको समझ सके इजीली। उसमें कोई सिंटैक्स नहीं लगे हुए हैं, सिंपल हमें फॉलो क्या करना होता है, ये जो मेथड मैंने बताया इसको फॉलो करना होता है। ठीक है, अब इस मेथड को हम एल्गो को कन्वर्ट करते हैं फ्लो चार्ट में। एल्गो को किस में कन्वर्ट करते हैं? फ्लो चार्ट में। ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है और फ्लो चार्ट होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जो पिक्चर या ड्राइंग की फॉर्म में होता है। देन दिस फ्लो चार्ट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोग्राम। ठीक है ना, तो एल्गोरिथम ये हो गया। अब हम बात करते हैं फ्लो चार्ट की। सी, दिस इज अ फ्लो चार्ट। हम कुछ जो सिंबल्स यूज करते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। फर्स्ट इज दिस वन, टर्मिनेटर। ठीक है, जो स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। इनपुट और आउटपुट के लिए रोम्बस यूज करते हैं हम, दिस वन। स्क्वायर, रेक्टेंगल हम यूज करते हैं कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये डायमंड हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, इफ यस और इफ नो, एंड दिस इज अ कनेक्टर। दीज आर द बेसिक सिंबल्स यूज टू क्रिएट अ फ्लो चार्ट। This is a basic symbol used to draw a flow chart. ठीक है, अब यहाँ पे ये वाले लेते हैं हम एग्जाम्पल्स, ये वाले लेते हैं। फर्स्ट क्या है, ऐड टू नंबर्स। ऐड टू नंबर्स के लिए हमने क्या किया, स्टार्ट किया। तो स्टार्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज हो रहा है फ्लो चार्ट में? ये वाला सिंबल यूज हो रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं स्टार्ट। फिर हम लगाते हैं एरो। फिर हमें चाहिए इनपुट। इनपुट क्या चाहिए, रीड ए एंड बी। तो उसके लिए हम क्या सिंबल बनाते हैं, पैरेललोग्राम। हाँ, तो यहाँ पे लिखोगे रीड ए एंड बी, हमने इनपुट ले लिया। फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए क्या सिंबल यूज करोगे, रेक्टेंगल। क्या लिखोगे, C इक्वल्स टू A प्लस बी। फिर आपको क्या करना है, आउटपुट डिस्प्ले करना है। आउटपुट के लिए भी क्या यूज करते हैं, पैरेललोग्राम। तो हम यहाँ करेंगे डिस्प्ले C, और फिर हम लास्ट में क्या करेंगे, उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, दिस इज एल्गोरिथम, दिस इज फ्लो चार्ट। और अगर इसी का ही हम प्रोग्राम लिखेंगे तो A प्लस बी का प्रोग्राम मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, हैश include stdio.h, उसके बाद मेन स्टार्ट करोगे। मेन के बाद int a b c, 3 वेरिएबल ले लिए। उसके बाद क्या करोगे, C इक्वल्स टू A प्लस बी करोगे, सेमीकॉलन, और उसके बाद printf %d_c। ये मैं समझा दूंगी बाद में जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, प्रिंट कर दिया और लास्ट में ब्रेसेस बंद कर दिए तो स्टॉप हो गया। तो A प्लस बी का प्रोग्राम था, उसका पहले एल्गो लिखना है। एल्गोरिथम ये हो गया, स्टार्ट, रीड A प्लस बी, एड A B, स्टोर C एंड स्टॉप। उसका फिर आप बनाओगे फ्लो चार्ट।
फ्लो चार्ट इस तरीके से बनाना है, स्टार्ट, रीड ए बी, कैलकुलेशन, देन डिस्प्ले आउटपुट एंड देन स्टॉप। फिर उसका बनेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, यस और नो क्लास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब दोबारा से, अब मैंने जो पहले एग्जाम्पल बताया उसको थ्योरी में पढ़ेंगे। अब थ्योरी में क्या है, कुछ सिंबल्स हमें सीखने होते हैं फ्लो चार्ट बनाने के लिए। जैसे जैसे फ्लो चार्ट आते जाएंगे मैं सिंबल्स भी बताती जाऊंगी। तो बेसिक सिंबल्स कौन से हैं वो देख लो यहाँ पे। ये टर्मिनेटर होते हैं, स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये वाला यूज करते हैं हम। ठीक है, पैरेललोग्राम यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। कैलकुलेशन के लिए ये रेक्टेंगल यूज करते हैं। डायमंड इज यूज्ड फॉर टेकिंग अ डिसीजंस एंड दिस पर्टिकुलर सर्कल इज यूज्ड एज अ कनेक्टर। अगर आपका एक पेज पे फ्लो चार्ट पूरा नहीं आता, यू हैव टू कनेक्ट दैट इनटू योर नेक्स्ट पेज ऑल्सो। अगर बड़े प्रोग्राम के फ्लो चार्ट्स बनाते हो तो कनेक्टर यूज करते हैं ताकि एक पेज से हम दूसरे पेज पे कनेक्ट कर सके। ठीक है, इसमें कोई डाउट सिंबल्स में? यस क्लास? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. अब फ्लो चार्ट देख लिया एक बारी कि फ्लो चार्ट होता कैसा है, फ्लो चार्ट क्यों यूज करते हैं वो पढ़ लेते हैं। फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। ये देखो, फ्लो चार्ट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग a problem. A flowchart is a set of symbols that indicates various operations in the program. Various operation means input लिया, output लिया, आपने उसको प्रोसेस किया, उसके लिए हम different symbols को use करते हैं। ठीक है ना? For every process there is a corresponding symbol. Yes, for every process there is a corresponding symbol for flowchart. Once an algorithm is written, its pictorial representation can be done using flowchart symbol. पहले क्या किया हमने, एल्गोरिथम लिखा यहाँ पे और फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन किया किसके थ्रू, फ्लोचार्ट के थ्रू। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम इज डन एज अ फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट बना लिया, उसका बेसिकली क्या है, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और विजुअल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सर्टेन सिंबल्स। किसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एल्गोरिथम का। किसका है? यस क्लास, किसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है? Algorithm. ठीक है, द फर्स्ट फ्लो चार्ट वाज मेड बाय जॉन वॉन न्यूमन इन 1945। राइट, ये जो लाइन है, जस्ट रीड इट आउट, रीड दीज लाइंस। What is the purpose of flowchart? अभी मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। बनके तुसी बटरफ्लाई किथे नू चलिया, हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तुसी भी कलिया। मंगनी ता नहीं हो गई, मंगनी ता नहीं हो गई, हत्था विच छलिया, हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तुसी भी कलिया। बनके तुसी बटरफ्लाई किथे नू चलिया, हैगा कोई बॉयफ्रेंड जा तुसी भी कलिया। Yes class, have you read this? Yes, ma'am. Okay. Purpose of flowchart is what is the purpose of flowchart? Communicate करता है
प्रोवाइड एन ओवरव्यू, ओवरव्यू एल्गोरिथम भी देता है, लेकिन एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए भी यूज करते हैं। शो ऑल द एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, क्विक मेथड ऑफ शोइंग प्रोग्राम फ्लो, चेक प्रोग्राम्स लॉजिक, जो हम एल्गोरिथम में लिखा है हमने वो प्रॉपरली एंड तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये फ्लो चार्ट से हम करते हैं। जब हम आगे एग्जांपल्स करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगी ये चीज। कोडिंग करने के लिए आसान रहता है। प्रोवाइडिंग प्रोग्राम रिवीजन, प्रोग्राम जो लिखा है वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट हो जाए और रिवाइज हो जाए, इसके लिए हम फ्लो चार्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक हम प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, राइट एन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट फॉर स्वैपिंग टू नंबर्स। ऐसे ही कोई आपको एक एग्जांपल मिलेगा, राइट एन एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम ऑफ दिस टू फाइंड टू नंबर्स, फाइंड द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स, फाइंड ग्रेटर ऑफ थ्री नंबर्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या है, पहले हमने कौन सा प्रोग्राम में एल्गोरिथम लिखा था, ए प्लस बी का। उसके बाद हमने कौन सा किया था, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3, एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब ये नेक्स्ट कौन सा है, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। अब यहाँ पे अगर हमने स्वैपिंग करनी है 2 नंबर की तो हम कैसे करेंगे, स्वैपिंग मतलब जो ये नंबर है वो इसमें आ जाए और जो ये वाला नंबर है वो इसमें आ जाए, तो हमने ये स्वैपिंग करनी है। ठीक है, स्वैपिंग करोगे कैसे, एक नंबर n1 है 25, एक नंबर n2 है 35। वी नीड टू स्वैप दिस नंबर। ठीक है, अगर हमें इनकी स्वैपिंग करनी है तो वी विल टेक अ टेम्परेरी स्टोरेज, स्वैप नाम से एक टेम्परेरी स्टोरेज या फिर टेम्प नाम से एक टेम्परेरी स्टोरेज ले लेते हैं हम। टेम्प नाम से एक टेम्परेरी स्टोरेज ले लेते हैं। पहले हम टेम्प में n1 डाल देते हैं। n1 टेम्प अभी खाली स्पेस है, तो टेम्प में अब क्या चला गया, यस क्लास, टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, N1 25। तो टेम्प में क्या चला गया 25। और n1 में हम क्या डाल देते हैं, N2 अब n1 खाली हो गया ना, अब n1 की यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई 35 30। अब n2 में क्या डाल देते हैं, N1 टेम्प में क्या था 25। अब वो किसमें चल गया n2 में, तो अब n2 की वैल्यू क्या हो गई, सॉरी 25 n2 की वैल्यू क्या होगी 25। तो अब ये क्या हो गया, स्वैपिंग हो गई। हम क्या लेके चले थे, n1 को 25 लेके चले थे और n2 को 35 लेके चले थे। बाय यूजिंग अ टेम्परेरी स्टोरेज या फिर एक थर्ड वेरिएबल टेम्प हमने ले लिया, इसको n3 भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो, c भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन दिस एज अ टेम्प। हमने इसको क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। ठीक है, ये समझ आ गया या दोबारा बताओ, यस क्लास, आ गया मैम, आ गया मैम, एवरीवन, यस मैम, या मैम। सो दिस इज द एल्गोरिथम जो मैंने अभी आपको समझाया। वहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले एल्गोरिथम में पहला स्टेप क्या होता है, स्टार्ट। उसके बाद क्या लेते हैं हम, क्विकली इनपुट तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा, नंबर नंबर वो नंबर जिनको हमने स्वैप करना है, नंबर 1 और नंबर 2।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है या ऑपरेट करना है, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो ऑपरेट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए हमारे 3 स्टेप लग रहे हैं यहाँ पे। देखो टेम्प में हमने क्या डाला, नम 1 में फिर क्या डाल दी, नम 2 की वैल्यू, और नम 2 में क्या डाल दिया, अगेन टेम्प की वैल्यू। अब हमें इनपुट स्टार्ट कर दिया, इनपुट ले लिया, ऑपरेट कर दिया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, आउटपुट डिस्प्ले करना है। यहाँ पे हमने आउटपुट डिस्प्ले कर दिया नम 1 और नम 2, और नेक्स्ट हमने क्या किया, इसको स्टॉप। कर दिया। एल्गोरिथम लिखने का क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट यू स्टार्ट, देन यू टेक इनपुट, देन यू कैलकुलेट और ऑपरेट, देन यू डिस्प्ले द आउटपुट, एंड द लास्ट वन इज स्टॉप। ठीक है, तो दिस इज मैम एल्गोरिथम। टेम्प है क्या? टेम्प खाली स्टोरेज है बच्चे, दोबारा बताती हूँ क्या टेम्प होता है। देखो num 1 या n1 जो हमने पहले 25 लिया था, n2 जो हमने 35 लिया था, जब हम ये वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इनकी वैल्यू डाल देते हैं तो होता क्या है, मेमोरी में यहाँ पे n1 नाम से मेमोरी में एक ब्लॉक फिक्स हो जाता है जिसमें हमने वैल्यू डाल दी 25। ऐसे ही n2 नाम से मेमोरी में एक ब्लॉक फिक्स हो गया जिसमें हमने वैल्यू डाल दी 35। लेकिन जब हम टेम्प यूज कर रहे हैं, हमने क्या किया, टेम्प एक खाली स्पेस ले लिया, हमने टेम्प में कोई वैल्यू यहाँ पे असाइन नहीं की, 35, 25, 45 कुछ भी वैल्यू हमने यहाँ पे असाइन नहीं की। हमने बस एक स्टोरेज लेके रख लिया, खाली स्टोरेज, जो हम यूज करेंगे इन दोनों नंबर को स्वैप करने के लिए, इन दोनों नंबर को स्वैप करने के लिए। अब यहाँ पे टेम्प खाली था तो हमने पहले इस n1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी, क्या हो गया यहाँ पे 25। जब हमने n1 की वैल्यू यहाँ पे डाली तो n1 क्या हो गया, खाली हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसकी जो डेटा था वो हमने उठा के टेम्प में डाल दिया। हमने फिर क्या किया, n1 खाली हो गया, n2 की वैल्यू कहाँ असाइन कर दी, n1 पे। यहाँ पे कितना आ गया 35, लेकिन 35 डालने के बाद n2 क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। 25 कहाँ डाल दी, n2 में, तो यहाँ पे क्या आ गया 25, और टेम्प फिर से क्या हो गया, empty. So temp is an empty variable which is used for swapping n1 and n2. किसका क्वेश्चन था, क्लियर है कि टेम्प क्या है? यस मैम। Should I move ahead? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हमें इसी का लिखना है, क्या लिखना है, फ्लो चार्ट। क्या लिखना है, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट देखो यहाँ पे कैसा है, पहले वाला फ्लो चार्ट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। दिस फ्लो चार्ट में भी सबसे पहले क्या करते हो, स्टार्ट। क्या करते हो, स्टार्ट। फिर पैरेललोग्राम यूज करते हो, किसके लिए, इनपुट के लिए। इनपुट के लिए। तो यहाँ इनपुट वेरिएबल कौन कौन से हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। वेरी गुड। फिर आप रेक्टेंगल किस लिए यूज करते हो, प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के लिए। तो टेम्प वाली सारी प्रोसेसिंग आपने किस में कर दी, यस मैम। दिख रहा है सबको, यस क्लास, यस मैम। ठीक है। उसके बाद आपने बेटा जिसके बैकग्राउंड में नॉइज है काइंडली म्यूट योरसेल्फ। बच्चे जिसके भी बैकग्राउंड में नॉइज है आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। फिर कौन है ये, तो यहाँ पे आउटपुट फिर क्या जनरेट किया, आउटपुट जनरेट किया, और लास्ट में क्या कर दिया, स्टॉप। ठीक है, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? नो मैम। Now we are doing one more example.
आज के लिए इसको अच्छी तरह समझोगे, यहाँ पे कंडीशन यूज हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है, राइट एन प्रोग्राम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड लार्जेस्ट अमंग टू नंबर्स। क्या निकालना है हमें? लार्जेस्ट अमंग टू नंबर्स, ठीक है। हम इसको करते कैसे हैं, एक मिनट का, क्या प्रोग्राम है? टेकल, हमें लार्जेस्ट अमंग टू नंबर्स निकालना है। तो ए नंबर है हमारे पास और बी नंबर है, हमें ये चेक करना है ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है। तो उसके लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। पता होंगे ये सब, यस और नो? तो हमने कंडीशन लगा दी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यस, अगर तो ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है, देन डिस्प्ले ए इज ग्रेटर। अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है? फॉल्स। फॉल्स, देन डिस्प्ले बी इज ग्रेटर, यस। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या दी हुई थी? फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ ए एंड बी। उसका हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा? एल्गोरिथम। बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना पड़ेगा? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट लिखने के बाद क्या लिखोगे? प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखोगे, वेरी गुड। प्रोग्राम लिखोगे। एल्गो कैसे लिखना है? पहले लॉजिक समझोगे और फिर उस लॉजिक का एल्गो बनाओगे। तो लॉजिक समझने के लिए कैसे करोगे? हाउ डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? लॉजिक कैसे समझोगे? दो नंबर है आपके पास, ए है और बी है, ठीक है। उसको आपने इफ कंडीशन लगाई, आपके पास दो नंबर है, ए है और बी है, ठीक है। क्या कंडीशन लगानी है? इफ कंडीशन। इफ कंडीशन लगाने के कैसे चेक करोगे? जैसे खुद सोचते हो कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो हम क्या आउटपुट में देंगे? ए इज ग्रेटर। अगर तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है। और अगर ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो इसका मतलब क्या है? बी इज ग्रेटर। बी इज ग्रेटर। तो ये हो गया हमारा लॉजिक, यस। इसमें कोई डाउट? क्लास? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड। अब हम इसका देखते हैं एल्गोरिथम कैसे लिखा हुआ है। एल्गोरिथम दिख रहा है क्लास? स्टेप वन। स्टेप वन क्या होता है हमेशा? स्टार्ट। क्या लेते हैं हम हमेशा? इनपुट। यहाँ पे इनपुट क्या होगा? इस प्रोग्राम में इनपुट क्या होगा? ए एंड बी, टू डिजिट्स नंबर। दो नंबर ए और बी, जिसके बीच में हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है। स्टेप थर्ड क्या होता है? या स्टेप टू के बाद क्या स्टेप्स आते हैं? कैलकुलेशन के या प्रोसेस। तो प्रोसेसिंग में सबसे पहला क्या है? हमने इफ कंडीशन लगाई, हमने चेक किया इफ ए इज ग्रेटर देन बी। देन अगर तो ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, तो आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा? ए। एल्स का मतलब ये कंडीशन क्या होगी? अदरवाइज। फॉल्स हो गई। क्या लिखोगे आउटपुट में? बी। बी। बी, ठीक है। और लास्ट क्या स्टेप होता है? स्टॉप। लास्ट क्या स्टेप होता है? स्टॉप। अब इसका फ्लो चार्ट बच्चे म्यूट कर लो। फ्लो चार्ट देखो, खुद से पढ़ो अब इस फ्लो चार्ट को। सबसे पहला हमेशा क्या होता है? स्टार्ट। ठीक है। स्टार्ट के बाद आप पैरेललोग्राम में क्या लोगे? इनपुट।
इनपुट लोगे, इनपुट में क्या होगा? A and B. 2 digits A and B. ए एंड बी, ए एंड बी। अब डायमंड मैंने बताया था डिसीजन बॉक्स होता है। डायमंड क्या होता है? Decision box. डिसीजन बॉक्स होता है, या इफ कंडीशन हम जहाँ पे लगाते हैं तो वो होता है। ठीक है, ओके। Yes. हाँ, यहाँ पे हमने क्या कंडीशन चेक कराई है? ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर यस होता है तो आउटपुट क्या आएगा? A. और नो होता है तो आउटपुट क्या आएगा? B. और दोनों ही कंडीशन में आउटपुट के बाद किस पे आ जाना चाहिए? Stop. स्टॉप पे आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? स्टॉप पे आ जाना चाहिए। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें? No, ma'am. फ्लो चार्ट में, एल्गोरिथम में कोई डाउट? No, ma'am. हाँ, यही तुम्हारी क्लास। यस। अब बताओ। कौन कौन है आज क्लास में? अनुराग, अनमोल, अनुराग, ठीक है। अनमोल, Yes, ma'am. I used to प्रीति, believe we were burning on the edge of something आकाश, beautiful. Present, ma'am. Something beautiful. अमन Selling a कुमार, dream. Smoking mirrors keep us waiting Aman on a Kumar. miracle. On a Present, ma'am. Go through the darkest Present, of ma'am. days, having Anuj. some heartbreak away. Never let you go, never let me down. Present, It's ma'am. been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't
ਬਣਦਾ ਏ ਜੋੜਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਦੀ ਵੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੱਟਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੇ ਪਰੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੇ ਰੱਖ ਅਲੜ ਦਾ ਸੀਨਾ ਵੇ ਤੂੰ ਠਾਰ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਆਜੂ ਮਿਲਣ ਬੁਕਲ ਜੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ Okay, I am done with your attendance. Okay, class. Now, let me know if you people are having any doubts. Yes, class. Let me know if you people are having any doubts. ਦੋ ਆਪ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ ਬੱਲੀਏ ਦੋ ਯਾਰਾਂ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ ਕੰਨ ਰਫਲਾ ਖੂਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰੇ ਜੱਟ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਕਾਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਬੀਜਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਖੋਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਏ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਾੜ ਕੇ ਅਸਲੇ ਨਾ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ ਜੱਟ ਲੋਈ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਬਿੱਲੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸਲੇ ਨਾ ਕਰੇ ਆਸ਼ਕੀ Yes, class. Have you any doubts? Say yes or no. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Ma'am, thanks. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आज लैब का सेशन भी है जो एग्जाम्पल्स हमने उसमें दिए हैं क्लास में बी का हो गया ए ग्रेटर देन बी का हो गया एवरेज का हो गया यही प्रोग्राम्स हम क्लास में करें सॉरी लैब में करें ठीक है तो एक बार ये वाले जो एग्जाम्पल्स हैं ये मैं दोबारा लैब के लिए समझाऊंगी विद कोड और उसके बाद आप लोग अपने आप रन भी करके देखें। हम कौन सा सॉफ्टवेयर में यूज करवाते हैं हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा लैब में? अभी तो मैं ऑनलाइन बताऊंगी मैं ऑनलाइन कंपाइलर मैं यूज कर रही हूँ जो जिसके पास लैपटॉप है वो लैपटॉप लेके बैठेगा लैब में। यस किस के पास टर्बो सी प्लस प्लस में चल जाएगा? हाँ जी चल जाएगा वो इंस्टॉल। हाँ तो सी उसमें में चलता है बच्चे मैं नहीं तो आप उस पे ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज करते हो अगर टर्बो सी नहीं है तो नो देयर इज नो इशू ठीक है। एनी अदर डाउट? No, ma'am. No, ma'am. एल्गोरिथम क्या होता है फ्लो चार्ट क्या होता है इनको हम क्यों यूज करते हैं इनमें क्या क्या स्टेप्स हैं क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं और जो एग्जांपल 3-4 मैंने बताए इनमें कोई डाउट किसी को भी ओके देन वी विल मीट इन लैब ओके आपकी लैब में ओनली ज्वाइन कर लेना ओके थैंक यू फॉर क्लास। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके आजू मिलण बुकल जट्टा मार के ਅਸਲੇ ਨਾ ਕਰੇ